کیا ہو گیا؟ اب تو ترکی بھی آئے گا، اب تو ایران بھی آئے گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو دو ممالک مبینہ طور پہ سب سے پہلے اس اتحاد کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، سعودی عرب اسرائیل کے بالکل قریب ہے، اور اسرائیل کو لڑنے کے لیے سعودی عرب اور گلف کے ممالک سے گزر کے پاکستان آنا ہے۔ اور اب جب پاکستان خود اسرائیل کی سرحد پر پہنچ جائے گا اور اس کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا تو یقینی طور پہ پاکستان اپنی جنگ وہیں پہ لڑ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ بہت خبریں سن چکے ہوں گے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ نے ایک دفاعی معاہدہ سائن کیا ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے مطابق ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس سے اس وقت نہ صرف پورے خطے بلکہ بھارت اور امریکہ میں بھی آگ لگ چکی ہے۔ آپ نے خبریں بہت سنی ہوں گی، لیکن ابھی اس ویڈیو کے اندر جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہوگا، اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے کون سے دو ممالک ہیں جو کہ اس اتحاد کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخی استقبال کیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی، F-15 طیاروں نے آ کے اسکواڈن کیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ استقبال اس سے پہلے ٹرمپ اور پیوٹن کو دیا گیا تھا۔ یہ حیران کن ڈیولپمنٹ اس وقت دشمن کی صفوں میں ایک تھرتھلی پیدا کر چکی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ مسلم کاز کا چیمپئن بن چکا ہے۔ جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ یہ کوئی عام ایگریمنٹ نہیں ہے، اس نے اس وقت پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ دراصل یہ ایک بنیاد ہے اسلامک نیٹو کی، اور جب یہ دو ممالک کے ساتھ تیسرا ملک بھی شامل ہوگا، چوتھا بھی ہوگا، پانچواں بھی ہوگا، تو یقینی طور پہ ان تمام ممالک پر حملہ، یعنی ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہی نیٹو کا مین کاز ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ ابھی تک مل کے افغانستان سے لے کے ہر ملک پر 29 ممالک کی فوجیں حملہ کرتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 8 دہائیوں پر مشتمل ہمارا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری جو ہے، یہ ایگریمنٹ اب اس کا ایک اہم ستون بن چکا ہے۔ کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع تحفظ کو مضبوط بنانا اس ایگریمنٹ کا مقصد ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ قیام امن کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی اور سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان جو ہیں، وہ پھر ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ سعودیہ اور پاکستان جارحہ کے مقابلے میں ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ آپ ان کا عزم اور ایکسائٹمنٹ اس ٹویٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایسے میں اسرائیل سے رد عمل تو آنا ہے، ٹرمپ کا رد عمل تو آنا ہے، لیکن بھارت کا رد عمل نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فوری طور پہ بھارت کا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بھارت جب پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، آپریشن سندور جو کہ ابھی تک جاری ہے، اگر وہ اس میں کوئی حرکت کرتا ہے تو کیا یہ تصور اسلامی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سعودی عرب کے اوپر تصور کیا جائے گا؟ اور پھر رندھیر جسوال انتہائی محتاط طریقے سے بیان دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اہم پیش رفت کے اپنے قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور اس پر کام جاری رہے گا۔ انڈین حکومت اپنے مفادات کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت کا سب سے بڑا دفاعی مددگار اسرائیل، جس نے پاکستان کے خلاف اپنی ٹیم تک بھیج کے، اپنے ڈرون تک بھیج کے مدد کی، کیا اب بھارت اسرائیل کے ساتھ کچھ اسی طرح کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے؟ لیکن یہ معاہدہ کرنے سے پہلے بھارت ایک دفعہ اپنے اوورسیز جو ان کے ممالک کے لوگ ہیں جو کہ گلف میں کام کر رہے ہیں، UAE، قطر، کویت، سعودی عرب سمیت بے تحاشا ممالک کے اندر، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ لے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب جس کے پاس کثیر وسائل موجود ہیں
और पाकिस्तान जिसके पास मजबूत फौजी सलाहियत है, इन दोनों का बर वक्त मिलाप इस वक्त गेम चेंजर की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर सिक्योरिटी गारंटर अमेरिका का पाकिस्तान कंपटीटर बन चुका है, और इसराइल के जो इत्तेहादी हैं भारत, अमेरिका ने उनसे गद्दारी की और कतर पर इसराइल ने हमला किया। ये सब डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके बाद पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर अपना असर व रसूख कायम करने में मदद मिली। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो सऊदी स्पॉन्सर्ड न्यूक्लियर पाकिस्तान के बारे में बड़े अरसे से एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये खुद पाकिस्तान का अपना एक अचीवमेंट है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर गारंटी भी देगा। तो न्यूक्लियर गारंटी की बातें तो कई दहाइयों पहले से इस वक्त चल रही हैं, और जाहिर सी बात है मक्का और मदीना के लिए तो हर मुसलमान की जान भी हाजिर है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका पर शक और गद्दारी के बाद अब इस वक्त उसकी दिफा के हवाले से बदएतमादी पाई जा रही है कि वो खलीजी ममालिक को दिफा फराहम नहीं कर सकता। अब बात यह है कि इस वक्त पूरे का पूरा जो हमारा निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें जो हमारे मिसाइल है वो पूरे के पूरे मशरिक़ वस्ता को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, और ख़ुद अमेरिका ने जब पाकिस्तान की उन कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी जो कि मिसाइल के इंग्रेडिएंट्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, तो कहा यह गया कि पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत आ चुकी है कि वो अमेरिका को भी निशाना बना सकता है। तो इससे ज्यादा मुझे इस हवाले से कहने की जरूरत नहीं। अब बात यह है कि सऊदी अरब से जाएंगे यूके, और यूके से जाएंगे अमेरिका, और फील्ड मार्शल भी शहबाज शरीफ के साथ होंगे। तो अब वहां पे जब ट्रंप के सामने शहबाज शरीफ बैठे होंगे तो इससे पहले सूरत हाल डिफरेंट थी, लेकिन अब सूरत हाल एक कंपटीटर की होगी कि दिफा के हवाले से अमेरिका का सबसे बड़ा क्लाइंट जो कि मशरिक़ वस्ता में है, वो अब पाकिस्तान कंपटीटर बन गया है। और एक तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं, इस पे मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और इस पे मैं ये समझता हूं कि शुक्रिया नेतन्याहू, तुमने सोई हुई कौम को, सोए हुए अरबों को, सोए हुए मुसलमानों को एक दफा जगा दिया है। और इसके साथ ही ट्रंप और मोदी का गठजोड़ अब आपको आने वाले दिनों में नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब खलीज का सिक्योरिटी गारंटर बन भी चुका है सऊदी अरब का, और दीगर ममालिक का बनने जा रहा है। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूं कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने MBS को यह कहा था कि जनाब आप सऊदी अरब इस्लामी इत्तेहाद को इकट्ठा करने के लिए एक अहम जिम्मेदारी रखता है और एक बड़ा मुल्क है, और इसको यह किरदार अदा करना चाहिए। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि क्या ईरान और सऊदी अरब, मुझे अच्छी तरह याद है जब इमरान खान ने ऑफर किया था ईरान और सऊदी अरब को मुज़ाकरात के लिए, तो बड़ी बातें आई थी कि मज़ारे चौधरियों की सुलह नहीं करवाते, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। पाकिस्तान जो ईरान के बिल्कुल करीब है, जो चीन के बिल्कुल करीब है, जो खलीज के बिल्कुल करीब है, इस वक्त पूरी दुनिया को जोड़ने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और इसके साथ ही क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब के अंदर अपना फौजी अड्डा बनाने जा रहा है, क्योंकि इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी हमला होता है तो पाकिस्तान तो आदी है कि आधे घंटे के अंदर अंदर हिसाब चुकता करना है। तो क्या हम इंतजार करेंगे कि सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल फायर हो गया है, चलें जी अब अपनी कश्तियां और मिसाइल सऊदी अरब भेज दें? नहीं, हम तैयारी पहले से ही करके रखेंगे और उस तैयारी के तहत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां पे एक बात इंतहाई अहम है कि पहले हमने इसराइल से लड़ना ही लड़ना है, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये इंतहाई अहम है, और पाकिस्तान की इसराइल के साथ लड़ाई के लिए ये इतनी अहमियत रखती है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सऊदी अरब इसराइल के बिल्कुल करीब है, और इसराइल को लड़ने के लिए सऊदी अरब और गल्फ के ममालिक से गुजर के पाकिस्तान
आना है। और अब जब पाकिस्तान खुद इसराइल की सरहद पर पहुंच जाएगा और उसकी हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान अपनी जंग वहीं पे लड़ लेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब भी देगा और मुकद्दस जमीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये जो मुआहिदा है ये नया मुआहिदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त मगरिब से लेके मशरिक तक हर तरफ आग लग चुकी है कि ये क्या हो गया। अब तो तुर्की भी आएगा, अब तो ईरान भी आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो दो मुमालिक मुबैना तौर पे सबसे पहले इस इत्तेहाद को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनका नाम है कतर और यूएई, कुवैत। और आपको बता दूं कि बहुत जल्द इसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। हमने ये देखा कि 1951 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की और पाकिस्तान ने उस मुकद्दस सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। और इसके साथ ही 1960 की दहाई में फिर एग्रीमेंट्स किए गए और तबादले किए गए वफूद के, फौजियों के। और हमने ये देखा कि 90 की दहाई में हमारी पूरी एक डिवीजन वहां पे लगी हुई थी, यानी 15 से 20 हजार फौजी वहां पे सऊदी अरब की सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। 1970 से लेके अब तक 10,000 फौजी जो हैं सऊदी अरब के वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के लिए आ चुके हैं। 1,000 फौजी जो है पाकिस्तान ने कई दफा कई हालात के अंदर वहां पे स्टेशन किया। और इसके साथ ही हमने देखा कि 2016 में जब मक्का के इर्द गिर्द मदीना के इर्द गिर्द दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत ही अहम किरदार था। जब सऊदी अरब ने सोचा कि 34 ममालिक पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद बनाया जाए मुस्लिम ममालिक की फौज का, तो उसको लीड करने के लिए भी हमने देखा कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को ही चुना गया। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब दिफा के मामले में, खास तौर पे एयरफोर्स के मामले में सऊदी अरब की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। ना सिर्फ JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 की बातें आ रही हैं कि PFX वर्जन सऊदी अरब को दिया जाएगा, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर खान 5th जनरेशन फाइटर जेट की फैक्ट्री लगाई जाएगी। मलेशिया इसके अंदर हमारा पार्टनर होगा। और किस्सा मुख्तसिर के मुसलमानों ने देर आए दुरुस्त आए अपने दिफा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ले ली है। जाहिर सी बात है, एक मुआशरा जब होता है तो किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास जिस्म होता है, किसी के पास ताकत होती है, किसी के पास अकल होती है। और जब मुआशरे के अंदर इन सब चीजों को मिला के मुश्तरका तौर पे एक दूसरे के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह 57 मुल्क, 2 अरब की आबादी, लाखों करोड़ों टैंक और इसके साथ बेतहाशा असला और रिसोर्सेज मिलके जब अपनी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं। मैं इस डेवलपमेंट से बहुत खुश हूं। अगर आप इस डेवलपमेंट के हवाले से कोई शक व शुबहात रखते हैं या खुशी का इजहार करना चाहते हैं, तो खुल के कमेंट्स के अंदर करें और हमें बताएं कि आप और इस हवाले से मजीद क्या जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए इन डेप्थ रिसर्च करके उसका तज्जिया आपके सामने पेश कर सके। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।